So in this class and in the next class, we'll be doing capital investment decisions, and the remaining topic of the time value of money we'll take after that. Okay, there were 2-3 topics that were left in time value of money that we'll take after this topic is complete. So what are capital investment decisions? I have discussed this in the first class. होते क्या है capital investment decisions? Capital investment decisions, or we also call them as capital budgeting decisions. Where to invest the capital, right? किस प्रोजेक्ट में we want to invest the capital? Are these long term or short term? Long term. Short term investment decisions को क्या बोलते हैं? Working capital decisions. Very good. So these are the long term decisions कि in the long run 10 years or 15 years which project we should select. So these type of projects give us return over the period of 10 to 15 years, or it is a staggered return that we get. So we have to calculate the forecasted cash flows from these type of projects. तो सबसे पहले क्या होता है capital budgeting? क्या होता है? Capital budgeting is a process of long range planning involving an investment of funds in long-term activities whose benefits are expected over a series of years. So it is not like that in this particular year you will reap all the benefits. Over a series of years you will get the benefits from these kind of projects. Now why these kind of projects are important? क्यों important होते हैं? You have to be extra careful while taking these kind of decisions. Why? Okay, so if I have to spend 10 rupees or 1 lakh rupees, then I will be more cautious. When I'll think more. When I have to invest 1 lakh, because the amount involved is larger. This while spending 10 rupees, I may not think कि I need to buy this or that. I'll just spend 10 rupees. But when I'm spending 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, then I'll think thrice or twice, right? So these kind of in the investment decision, long-term investment decisions, the amount, the outlay is huge, right? So you are spending crore of rupees, lakhs of rupees. So these are irreversible. These involves large amount of funds. These are important, vital for your long-term growth. अब जैसे किस चीज में कंपनी इन्वेस्ट करती है? What kind of decisions will come under capital investment decisions? Fixed assets का purchase. All these are fixed assets. Either they want to reduce the cost or they want to increase their revenue, right? So reduction of cost में, reduction of how will you reduce the cost? By involve buying some tech savvy machines. ठीक है? These involves a huge outlay. You have to spend a lot of money, right? You can increase your revenue increase. You can in revenue expansion. How will expand your revenue? Diversification. You can diversify your line of products. You can expand. Suppose you are currently running your business in Asia and now you want to expand it in Europe. So that also involves, these are also comes under capital investment decisions. कि अगर मैं suppose I want to start expanding in Europe, तो यूरोप के किस country से should I start investing? What should be my initial project? मुझे किसी के साथ collaborate करके करना चाहिए और outrightly मुझे अपना business वहाँ पे शुरू कर देना चाहिए. All these kind of decisions come under capital investment decisions, right? When we are selecting the project, दो terms होती हैं. Suppose you have project X, you have multiple opportunities. When you start looking for opportunities, बहुत सारी opportunities होती है. Suppose यूरोप में ही मुझे invest करना है, तो जर्मनी में करूँ या फ्रांस में करूँ? Suppose project ही है.
ठीक है, अब ये दोनों प्रोजेक्ट हो सकता है दोनों ही मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है दोनों। तो अगर तो दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स ए एंड वाई आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, then I'll invest in both. Why? Because these are profitable investments and this will ultimately increase what? What is my ultimate objective? To increase the wealth of the shareholders. And positive returns will increase the wealth of the shareholders. If these are independent and I have sufficient finances, then I'll invest in both. ठीक है, अगर तो इंडिपेंडेंट है और मेरे पास इतना कैश है, इतना फाइनेंस है कि मैं दोनों को फाइनेंस कर सकती हूँ, इतने पैसे हैं, then I'll invest in both. If there is capital rationing and I have to choose that in which project should I invest, then I'll choose the one with more returns, right? So I'll start ranking them. I'll start ranking them, and according to my cash that I have, the sources of funds that I have, I'll invest accordingly. One is known as mutually exclusive projects. Mutually exclusive, you must have heard this term in your mathematics while in 11th 12th we are doing mathematics. Mutually exclusive क्या होता है? What do you mean by mutually exclusive? Not related. Independent is also not related. Independent projects are the ones that are not dependent or related to each other in any sense. No one knows the meaning of mutually exclusive? Mutually exclusive projects होते हैं कि if I take a project A, then I cannot take project B. अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं इसमें नहीं कर सकती, और अगर मैं इसमें करती हूँ तो इसमें नहीं कर सकती. I cannot simultaneously invest in both the projects. Those are known as mutually exclusive projects. So while you are studying different techniques of capital budgeting, you will come across this term mutually exclusive, and especially in IRR, you will study that it is not compatible. This kind of technique is not compatible where the projects are mutually exclusive. Internal rate of return. You will study these techniques in this chapter only. Okay, so these are the techniques of capital budgeting. This is one of that. Now first we'll study how we calculate the cash flows. So cash flow analysis कैसे करते हैं? देखो, जब आप you start a project, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? Initial investment चाहिए. When you are initially investing, तो सबसे पहले क्या होगा आपका? Fixed cost का खर्चा, whatever machinery you want to purchase. Suppose I'm starting a business and I be needing a machine, a land, etc. So the cost of that machine, suppose that is machine A. Okay. So whatever expense I need to put, मतलब अगर वो उसका MRP है 10 लाख, I'm buying it at 10 lakh rupees, so that will be the cost of fixed asset. 10 lakh I have to spend, kafa. Now installation charges, there must be some installation charges as well. You have bought the machine, now you need to install it in your plant. So you'll add the installation charges. Now this will only come sale price of old asset if you had some old asset and you are selling that in exchange of, suppose I am upgrading my machine. So to buy this A machine, I am letting go of my old machine that was Z. Right? So when I am selling it, then I am getting some cash in return. So I will subtract that cash, that value of that old asset. Right? And now suppose the book value of that old asset was 5 lakh rupees. The book value of that old asset in my book was 5 lakh rupees. Now I may be able to sell it for either 7 lakh rupees or 3 lakh rupees. The actual price at which I am selling may be higher or lower than the price stated in the books. Right? So if I am selling it at profit, then I need to pay the taxes.
If I am selling it at 7, then my profit is 2 lakh on this when I am selling it. So in this I need to pay the taxes, and if it is less, then I am making the losses. When I am making 2 lakh rupees as losses, then I am saving on taxes. Why we assume that we are saving on taxes? Because we assume that the company has other sources of finance against which we can set off these kind of losses, right? तो अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? टैक्स अगर इंक्रीज हो जाता है तो बढ़ जाएगा. अगर टैक्स है विल इंक्रीज दिस कॉस्ट. अगर हमने सेव किया है विल रिड्यूस इट बाय दैट मच. ठीक है, जो भी उस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो इस 2 लाख पे विल कैलकुलेट टैक्स एंड विल डू द कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली. अब नाउ यू विल आल्सो रिक्वायर सम वर्किंग कैपिटल. व्हेन आई एम स्टार्टिंग, मैं मशीन ले आई, अब आई एम स्टार्टिंग द बिजनेस, देन आई विल बी रिक्वायरिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, I might have some debtors, so I need that working capital, initial working capital to purchase that raw material as well. So that will also come under the initial investment, क्योंकि मशीन लाके रख ली और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, then it is of no use. So I'll add the additional working capital requirement, right? So this all is initial investment that will be required. The entire thing, okay. Suppose I'm starting a business, okay. Suppose my business is running, currently it's running, and I want to upgrade my machine. Fine. So if I want to upgrade my machine, मैं पुरानी को बेच के एक नई मशीन लेना चाहती हूँ जो कि टेक से भी ज्यादा अपग्रेडेड है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी. तो अब जब मैं गई खरीदने, तो सपोज उसका प्राइस था 20 लाख रुपीज. तब मुझे क्या क्या खर्चे होंगे? ठीक है, हम वी हैव टू जस्ट थिंक कि इनिशियली मुझको क्या क्या पे करना पड़ेगा. पहले तो मुझे उसको खरीदने के लिए 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ आई हैव बॉट इट टू माय प्लांट, नाउ आई हैव टू इंस्टॉल इट. अब मैं किसी लेबर को बुलाऊंगी, उसको इंस्टॉल करवाऊंगी, तो उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे, वो भी तो मेरा इनिशियल खर्चा है. अगर मैं उसको इंस्टॉल ही नहीं करवाऊंगी, रन ही नहीं कर पाएगी, तो कोई यूज नहीं है. सपोज उसका 2 लाख इंस्टॉलेशन चार्जेस है, आई विल ऐड दैट इंस्टॉलेशन चार्जेस. ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक्सचेंज किया है, मेरी पुरानी जो मशीन थी उसको बेच दिया. अगर तो पुरानी मशीन नहीं है तो ये कैलकुलेशन हट जाएगा पूरा, सेल वाला और ये पुराने पे टैक्स वाला. ठीक है, अब वो जो पुरानी मशीन थी वो मेरी बुक्स में थी 5 लाख रुपीस की. मैं गई और मैंने उसे 7 लाख रुपीस पे बेच दिया. अभी जो टैक्स रेट चल रहा है 10% टैक्स है कैपिटल गेन्स पे. ये मेरा कैपिटल गेन है. कैपिटल गेन क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, राइट. इस पे कैपिटल गेन्स पे 10% टैक्स है. मैं गई तो 2 लाख रुपए में मैंने बेचा, तो ये 7 लाख रुपए मेरे पास पहली बात आए. ठीक है, अब ये मुझे पैसे नहीं देने, मुझे अभी क्या निकालना है कि अभी मेरा कैश रिक्वायरमेंट कितना है, मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, राइट. ये 7 लाख नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे पुरानी मशीन से मिल गए. इस 2 लाख रुपीस पे 10% टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा. वो इस 7 लाख में से कम हो जाएगा क्योंकि मुझे 7 नहीं मिलेगा, पूरा 7 नहीं मिलेगा ना, उसमें से कम हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, इसलिए वहां पे टैक्स प्लस लिखा हुआ है. उतना पैसा आपको और चाहिए होगा ना टैक्स वाला. तो 2 लाख पे 10% कितना हो गया? 20,000. ठीक है, अब मैं उस मशीन को लाके इंस्टॉल कर लिया. नाउ आई हैव टू रन इट. सो आई विल बी रिक्वायरिंग द रॉ मटेरियल. सपोज दैट रॉ मटेरियल कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ, मुझे हर बार वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब आप वर्किंग कैपिटल डिसीजंस पढ़ोगे तो यू विल कैलकुलेट कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है. उससे मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सपोज 1 लाख रुपीज है. हर बार, हर ईयर, एवरी ईयर आई रिक्वायर 1 लाख रुपीज एज वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर आपका रॉ मटेरियल होता है, आपके सारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, आपका डेटर होता है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं कुछ. तो उतना पैसा मेरा ब्लॉक हो जाता है ना, बिकॉज दैट इज नॉट आई एम गेटिंग इट एज कैश. मैं रॉ मटेरियल को अगर 50 रुपए लेके खरीद आई तो वो मेरे को कैश चाहिए ना. अभी जब व्हेन आई सेल इट तब मुझे वो कैश मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो मेरे को सपोज वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज, तो वो मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि वो भी मुझे अभी चाहिए, कैश चाहिए खरीदने के लिए. तो ये कितना हो गया? 22 प्लस 23, 23 माइनस 7, 16, 16 plus 20, 16 lakh 20,000 will be my initial investment, जो मुझे स्टार्ट करते ही चाहिए. इतना कैश
इतना सोर्स ऑफ फंड तो मुझे अभी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये मेरा कैश जा रहा है। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? अब नाउ व्हाट विल आई कैलकुलेट, क्या मैंने इस मशीन में पैसे तो लगा दिए, अब मेरे सब्सिक्वेंट ईयर्स में मेरे को रिटर्न कितना आएगा, ठीक है, जिसका हम क्या करते हैं, फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। हाउ मच रिटर्न दिस मशीन विल प्रोड्यूस फॉर मी। मुझे इन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज में करना है तो मैं दो चीजों को कंपेयर करूंगी, उससे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसमें जो मुझे कॉस्ट लग रही है। ये मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया कि मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट कि मुझे उससे रेवेन्यू कितना आएगा। रेवेन्यू क्या होता है, मैंने बताया था अभी, सीरीज ऑफ द ईयर्स आता है, एक साल में नहीं आ जाता, फिक्स्ड एसेट से यू गेट द रेवेन्यू ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। सो अब मुझे रेवेन्यू इसका कैलकुलेट करना है सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो सेल उस एसेट से कितनी हुई, उस मशीन ने जो प्रोड्यूस किया उससे सेल कितनी हो रही है, ठीक है। अगर मेरे पास ओल्ड मशीन थी, अगर मेरे पास ओल्ड मशीन थी और मुझे डिसाइड करना है, मुझे क्या डिसाइड करना है जब ओल्ड मशीन मेरे पास थी, कि मैं अपग्रेड करूं या नहीं करूं, तो उस केस में व्हाट विल आई कंपेयर, ओनली इंक्रीमेंटल कैश वैल्यूज, कि ये वाली नई मशीन लाने से मेरा सेल कितना इंक्रीज हो गया। अगर मैं पहले 10 लाख रुपीस पर मंथ कर रही थी और अब ये मशीन ले आती हूँ तो मैं 12 लाख करती हूँ, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इस मशीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 लाख रुपीस, राइट। तो सेल में से आप माइनस करोगे, दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जब आप माइनस करते हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उस मशीन से, अगर आप न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सारा फिक्स्ड कॉस्ट आपका उसी मशीन से रिलेटेड है, बट अगर पुराना कुछ था तो ओनली एंड ओनली विल कंसिडर द incremental variable cost, incremental fixed cost, incremental sales, right? Now we'll subtract depreciation and उसके बाद हम क्या लगाएंगे, tax. We have added back the depreciation. ऐसा क्यों, पहले हमने यहाँ subtract किया, now you say minus plus तो it will cancel out. Why we have done it, why we have subtracted and then added it back? सो उसके लिए हमें कैश चाहिए नहीं, तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट में नहीं चाहिए, ठीक है। पर फिर हमने क्यों किया, सब्ट्रैक्ट और ऐड क्यों किया, हम उसको सब्ट्रैक्ट ही नहीं करते, सिर्फ यहीं पे कर देते, बिकॉज हमें टैक्स निकालना और डेप्रिसिएशन इज अलाउड एज टैक्स डिडक्शन, ठीक है। अगर मेरा 10 लाख यहाँ तक आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके, और मेरा 10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो मेरा टैक्स कितने पे लगेगा, 9,90,000 पे। ये अमाउंट निकालने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे नहीं निकाल सकती टैक्स, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ठीक है। या तो आपको ऐसे दे सकते हैं, वो ये तो पूरा रॉ गया, या फिर वो आपको बता सकते हैं कि उससे नेट प्रॉफिट हमें इतना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें सीधा सीधा नेट प्रॉफिट दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया मतलब पीएनएल का लास्ट दे दिया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आता है नीचे पीएनएल में, ऑपरेटिंग और सारे फाइनेंसिंग डिसीजन सबसे मिला के, जब वो नेट प्रॉफिट हमें दे दिया, विल एड बैक डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन सब्ट्रैक्टेड, विल आल्सो एड बैक इंटरेस्ट, क्यों, इंटरेस्ट ऑन योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट क्यों ऐड कर दिया हमने, बिकॉज दिस हैज नथिंग टू डू कि मैं किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, दिस हैज समथिंग टू डू विद द फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि मैं डेट से रेस करूं या इक्विटी से रेस करूं। मैं डेट से ज्यादा रेस करती हूँ तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट के वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अगर मेरा प्रोजेक्ट मुझे रिटर्न देता है 14% का, तो इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं उस सोर्स ऑफ, मेरे को अगर 10 लाख का रिक्वायरमेंट था, मैंने डेट से लिया, इक्विटी से लिया, किससे लिया, इसलिए वी हैव एडेड बैक द इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, इंटरेस्ट भी, तो इस पे मुझे कुछ टैक्स सेविंग भी हुआ होगा, राइट।
जैसे कि सपोज 10 लाख मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, 1 लाख का मैंने डेट ले रखा था जिसपे 10% इंटरेस्ट था, राइट। तो 10% इंटरेस्ट में दे रही थी, 10 लाख में से आई सब्ट्रैक्ट 10,000, ठीक है, मेरे टैक्सेबल इनकम कितना आएगा 9,90,000, इसमें सपोज 10% टैक्स है फिर से, सो दिस विल बी 9,900, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 981,100, राइट, नहीं 81,100, 9,80,100, राइट। टैक्स 99,000 नहीं होगा, हाँ 99 नहीं, हाँ 99 आएगा, 9,90,000 का 99,000 आएगा 10%, सो दिस विल बी 8,91,000, ओके। अगर मैं ये डेट नहीं लेती, ये डिक्रीज नहीं होता, तो मेरा टैक्स कितना आता 10 लाख, इस पर 10% हट जाता विच विल बी 1 लाख रुपीज, तो ये कितना आ जाता 9 लाख रुपीज। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 9,000 का, और मैंने लोन लिया मेरा ये कितना आ रहा था, इंटरेस्ट कितना आ रहा था 10,000, पर डिफरेंस कितना आया 9,000 का, क्यों, बिकॉज आई हैव सेव्ड, टैक्स इस पे कम लगा, ये टैक्स डिडक्टेबल है, तो ये मेरा जो 1,000 पैसे बच गए, ये क्यों बच गए, बिकॉज ऑफ द अमाउंट आई हैव सेव्ड ऑन द टैक्स, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो इसलिए यहाँ पे आफ्टर टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट और उस पे टैक्स सेविंग जितना हुआ आई विल ऐड बैक, ठीक है। अगर हमें नेट प्रॉफिट दिया है, डिपेंड्स हमें क्या दिया हुआ है और कहां से कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका टर्मिनल कैश, अब हमारा लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ द मशीन हैज एंडेड, खत्म हो गया, ठीक है, अब उसकी यूजफुल लाइफ हैज एंडेड, तो हमें क्या मिलेगा जब हम उसे बेचेंगे, उसका सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, अब जो भी उसका स्क्रैप वैल्यू हम उस मार्केट में बेचने जाएंगे, दैट हैज बिकम रिडंडेंट, वो मशीन रिडंडेंट हो गई है, तो हमें उसका सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब वही सेम बात है, हो सकता है मेरे बुक में मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10 लाख में मशीन खरीदी थी, आज डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू इज 5 लाख रुपीज, आई गो इन द मार्केट, हो सकता है मैं 7 पे बेचूं, हो सकता है मैं 3 पे बेचूं, हो सकता है 4 पे बेचूं, 8 पे बेचूं, ठीक है, द एक्चुअल प्राइस मे डिफर, तो अगर प्रॉफिट हुआ है सो विल सब्ट्रैक्ट द टैक्स ऑन कैपिटल गेन, अगर लॉस हुआ है विल ऐड द टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉसेस, राइट। और जो वर्किंग कैपिटल हमने लगाई थी वो क्या हो जाएगी, दैट वर्किंग कैपिटल विल रियलाइज, अगर हमारे रॉ मटेरियल थे, अब हमारी मशीन खत्म हो गई तो हम उसको भी बेच देंगे, तो उससे हमें कैश मिलेगा, सो विल रियलाइज दैट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दीज 3 थिंग्स, अभी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है। Please solve this question. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो पहले देखो इनिशियल क्या क्या खर्चा होता जा रहा है,
किसी का आया इनिशियल? कहां से शुरू करेंगे? चलो, परचेज प्राइस कितना है? What is the purchase price? 10 lakh rupees. What will add? Installation charges. कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस? 2 लाख. उसके बाद कोई ओल्ड मशीन है यहाँ पे? ओल्ड मशीन है, ठीक है. तो मैं कितने का बेच रही हूँ उसे? मेरा बुक वैल्यू है 4. दैट इज द बुक वैल्यू, दैट इज नॉट द रियलाइज्ड वैल्यू. ठीक है, बुक वैल्यू कितना है? 4 लाख. प्रेजेंट स्क्रैप वैल्यू कितना है? 5 लाख. तो मैंने कितने में बेचा? मतलब 5 लाख रुपीस पे. सो आई विल ऐड द सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन, जो कि कितना है? 5 लाख रुपीस. बुक वैल्यू 4 था, हाँ सॉरी, बुक वैल्यू कितना है? 4 लाख एंड आई हैव सोल्ड इट एट 5 लाख. तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ है. कितने का? 1 लाख का. टैक्स रेट क्या है मेरा? 40%. सो टैक्स कितना हुआ मेरा? 40,000. इसे मैं क्या करूंगी? टैक्स ऑन कैपिटल गेन 40,000. राइट. अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए मुझे? कोई वर्किंग कैपिटल चाहिए? वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन ईयर 0. ईयर 0 का मतलब क्या हुआ? अभी एट प्रेजेंट विच इज 2,50,000. कितना आया? हाउ मच दिस इज कमिंग एज? कैलकुलेट करो. कितना? 9,90,000. ये हो गया हमारा स्टेप 1, इनिशियल निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है? सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज. व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ दिस एसेट? 4 years. So for how many years this will give the return? For 4 years. तो हमें क्या निकालना होगा? 4 years का रिटर्न. 1, 2, 3 and 4. ठीक है, कहां से शुरू करें? सेल्स या रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? इस एसेट से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है हर साल? एनुअली कितना मिल रहा है हमें? 21,50,000. ये हर साल मिल रहा है. दिस इज एनुअल रिटर्न. ठीक है, एनुअल रेवेन्यू हमें ये जनरेट हो रहा है. ये रेवेन्यू क्या? इसका एक्सपेंस कितना है? सो आई विल सबट्रैक्ट द एक्सपेंस. कैश एक्सपेंसेस हमेशा किसकी बात हो रही है? कैश की. ठीक है, सो विल सबट्रैक्ट 9,50,000. एवरी ईयर विल सबट्रैक्ट 9,50,000. राइट. ठीक है, अभी कितना आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना आया? 12 लाख. नाउ व्हाट विल आई डू? अब क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, तो क्या करते हैं? विल सबट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है? डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट 92% ऑफ द कॉस्ट
is to be depreciated in the ratios this over 4 years. हाँ 8% स्क्रैप वैल्यू मतलब 92% का मतलब क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो जा रहा है तो लास्ट साल में उसका कितना वैल्यू बच जा रहा है 8%, जो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, सबसे पहले किस प्राइस पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन? 10 लाख पे और 12 लाख पे. 12 लाख पे हमेशा जब भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है तो वो हमारा प्राइस ऑफ द एसेट ही बन जाती है. ठीक है. सो 12 लाख का क्या करोगे आप लोग? वर्किंग में क्या दिखाओगे? 12 लाख का 92% एंड इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी, क्या रेशियो दिया हुआ है? So this will be 5 divided by summation of these, which will be 23. क्या आएगा अमाउंट? 2,40,000 in the initial year. In the second year, this will change. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिर्फ ये चेंज होगा. Now in the second year, this will become 8. How much? 3,84,000. Third year, now this will be 6. 2,88,000. And in the last year, it will be 4 there. One lakh 1,92,000. So this will be profit before tax. कितना आ गया profit before tax? Subtract this. This. This was, this amount was right. Is this visible? Yes. Now what will subtract? Tax. What is the tax rate? Calculate tax on this. कितना? So profit after tax will be पहले का कितना आ रहा है? 5,76,000. Second will be 489,600.
third 547 200, and the last year how much? 6,48,100. यहां तक सब लोग पहुंच गए? एवरीवन इज हेयर? Everyone is at this point. Now what we'll do? We'll add back the depreciation. So we'll add back these amounts. We'll add back 2,40,000, then 3,84,000, then 2,88,000, and then 1,92,000. What will be the amounts? 8,16,000. Then then just okay, and the last one. Okay. Now I'm writing down the values. ठीक है? So we have yet talked about just this machine. Okay. So this machine, the new one, will give us how much return? Annual cash flows. Annual cash flows will be, in the year 1 it was how much? 8,16,000. In the second year 8 lakh. Third year 8,30,000. And now it will be 796. Now we had an old machine in this case. So हमें क्या करना पड़ेगा? Calculate. This is the annual cash flow. What we need to compare it with? With the old machine, when I'm taking the decision, then I have to decide कि इससे increment कितना हो रहा है. So I have to ultimately calculate the incremental cash flows and not just the annual cash flows. Incremental cash flows. So इस के annual cash flows में से what I have to subtract? The annual cash flows of the old machine. ठीक है? So we have to calculate the annual cash flows of the old machine. Can you? Since we are comparing two machines, we had an old machine and we have a new machine. So we have to compare कि इस न्यू मशीन के आने से इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज कितना हो गया, राइट? तो इसका एनुअल कैश फ्लो ये था, ये इसका इंडिपेंडेंट एनुअल कैश फ्लो है. नाउ आई हैव टू कंपेयर कि ओल्ड मशीन का एनुअल कैश फ्लो कितना था. सपोज मेरा ओल्ड मशीन एनुअली मुझे 1 लाख दे रही थी. नाउ आई हैव बॉट अ न्यू मशीन जिसका एनुअल कैश फ्लो है 2 लाख. तो इस न्यू मशीन के आ जाने से मुझे फायदा कितना हो रहा है? 2 लाख नहीं हो रहा ना. इट इज नॉट 2 लाख रुपीज, इट इज 1 लाख. इफ आई अपग्रेड दिस, if I scrap this one and bring this new one, then I am having an incremental cash flows. मुझे फायदा कितने का होगा? 1 लाख रुपए का. बिकॉज एक तो मुझे पहले ही हो रहा था 1 लाख. आई वाज सो इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, राइट? कि इस मशीन के आ जाने से इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हुआ. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, इज इट क्लियर? सो वी हैव टू कैलकुलेट द कैश फ्लोज ऑफ द ओल्ड मशीन for the old machine. 15. हाँ 15.
एवरीवन है। ओल्ड मशीन का रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू फ्रॉम द ओल्ड मशीन 19,25,000। उसका एक्सपेंस कितना था? 11,25,000। कितना आ गया बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन? कितना? 8 लाख। Now we'll subtract depreciation. Depreciation will be at a rate of 1 lakh rupees. So we'll have 7 lakh. We'll put tax on this. Tax is 40%. ठीक है, तो आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 4,20,000, राइट? एनीथिंग एल्स? अब और क्या करेंगे? We'll add back the depreciation. How much was the depreciation? 1 lakh rupees. So this will be 5,20,000. How much was the annual cash flow of the old machine? 5,20,000. So we'll subtract 5,20,000 from this. Subtract करो. How much? 2 lakh? 96,000. Second year? How much? 356,300. Third? 315,200. Last year? 276,800. Now what is left? One more calculation is left. Terminal cash flow. The third part we have to calculate कि जब इसका useful life खत्म हो जाएगा, then how much cash it will give us. So that will be the terminal cash flow. Terminal cash flow. What is the salvage value? How much? 3.5. The 8% of 12 lakh. कितना होगा? So 80 तो आएगा. रुको. Scrap value of the new asset will be 3,50,000. Well and good. This is what? This is the book value. Book में मेरा कितना value बचेगा? 96,000. Right? Scrap value of the new asset after 4 years will be 8,50,000. तो मुझे profit हो रहा है कि loss हो रहा है? बुक में मेरे एसेट का वैल्यू था 96,000. मार्केट में फॉर हाउ मच आई एम सेलिंग इट? एक्चुअल प्राइस मुझे कितना मिला? 3,50,000. सो हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग? 3,50,000 में से आई सब्ट्रैक्ट 96,000. $3,44,000 $2,54,000 will be the profit. Right? Now I'll give what? Tax on this.
सो टैक्स कितना हो जाएगा 40%, 2,54,000 का 1,16,100, ठीक है। सो आई वॉज गेटिंग, अब मैं क्या करूंगी 3,50,000 में से आई विल सबट्रैक्ट दिस टैक्स, राइट, 3,50,000 में से, बिकॉज दिस इज द अमाउंट आई एम गेटिंग, ये मैं बेचने गई मुझे मिला, अब इसमें से टैक्स आई विल सबट्रैक्ट, तो मेरे हाथ में कितना कैश आएगा 3,50,000 में से सबट्रैक्ट 1,16,100, 2,48,400, ये क्या है हमारी स्क्रैप वैल्यू। अब एक चीज और रह गया टर्मिनल कैश फ्लो में, एक और चीज ऐड होगी, वर्किंग कैपिटल रिलीज्ड। तो हम क्या, अगर कुछ भी नहीं बोला वर्किंग कैपिटल के बारे में, देन विल अज्यूम कि जितनी हमने इनिशियली लगाई थी एट ईयर 0 वही हम एंड तक एनुअली वी वर पुटिंग दैट मच अमाउंट, तो उतना ही हमें रियलाइज हो जाएगा, विच विल बी 2,50,000, 4,98,400, ये क्या होगा टर्मिनल कैश फ्लो 4,98,400। और ईयर 5 में हमें जाके कितने पैसे मिल जाएंगे ईयर 4 में, ईयर 4 के एंड में ये हमारा टर्मिनल हो गया 4,98,400 प्लस उस साल जो हमारा एनुअल आया था, एनुअल कैश फ्लो, वो कितना आया था 7,96,800। सो ये ईयर 4 में हमें ये मिलेगा, ठीक है। एनी डाउट? किसी को कोई भी पार्ट में डाउट है? 6% ऑफ, दैट इज नॉट 6%, इट्स 8%, ये ना 8% है, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया 92%, मतलब 4 साल में हमारा एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया 92, मैं हर साल उसका वैल्यू रिड्यूस करती जाऊंगी, 92% मैंने रिड्यूस कर दिया, तो लास्ट ईयर बुक में कितना वैल्यू बच गया 8%, तो इसलिए 8% ऑफ 12 लाख, 10 लाख प्लस 2 लाख इंस्टॉलेशन चार्जेस। एनी अदर डाउट? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट एनीवन? एक और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो डू दिस क्वेश्चन। These are the kind of question that you get in your exams. अगर you want simpler question, मैं आपको यहाँ पे simple करा दूंगी क्लास में. If you want to practice them at home, I'm either way I'm fine. But I need everyone to practice these kind of questions. Everyone start solving. सबसे पहले क्या निकालना है? इनिशियल कैश आउटफ्लो। करो स्टार्ट। यहाँ तक का विजिबल है? तो पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है।
XYZ Limited is trying to decide whether it should replace a manually operated machine with a fully automatic version of the same machine. The existing machine purchased 10 years ago has a book value of, ओल्ड मशीन का पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बुक वैल्यू कितनी है 1,40,000 and a remaining life of 10 years. The salvage value is 40,000. यहां से हमें क्या पता चल गया, that we are selling it at a loss. कितने लॉस पे, 1 लाख के लॉस पे हम लोग सेल कर रहे हैं. तो लॉस पे जब सेल करते हैं तो टैक्स सेविंग होता है. ठीक है, आगे पढ़ो. The machine has recently begun causing problems with breakdowns and is costing the company 20,000 per year. अब ये इंफॉर्मेशन किसकी दी है, न्यू मशीन, ये ओल्ड मशीन की है, सॉरी. उसका एक्सपेंस कितना पड़ रहा है हमें, कंपनी को 20,000 पर ईयर. ठीक है. The company has been offered 1 lakh for the old machine as a trade-in on the automatic model, which has a delivery price before allowance for trade-in of, the new machine का परचेज प्राइस क्या है, 2,20,000. बट अगर मैं एक्सचेंज करती हूँ तो मेरी ओल्ड कितने में चली जाती है, एक्सचेंज प्राइस क्या है यहाँ पे 1 lakh rupees. It is expected to have a 10-year life. लाइफ कितना है 10 years. Salvage value कितना है 20,000. The new machine will require installation modification costing 40,000. तो इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं 40,000. But it is estimated to have a cost saving in materials of material of 80,000 per year. Maintenance costs are included in the purchase contract and are borne by the machine manufacturer. The tax rate is 40%, applicable to both revenue income as well as capital gain and losses. Straight line depreciation over 10 years will be used. Find out the relevant cash flows. ये इंफॉर्मेशन दी है हमें. क्या कहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, हाँ 20,000. ओल्ड मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू 40,000 थी. हाँ 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 1 लाख. अगर मैं मार्केट में जाती और उसे बेचती तो मुझे 40 मिलता. बट इफ आई एम एक्सचेंजिंग इट फॉर द न्यू मॉडल, जैसे हम कंपनी के पास जाते हैं वो हमें स्कीम नहीं देते हैं, तो अगर मैं उसको एक्सचेंज कर रही हूँ तो मुझे कितना वो कम करके दे रहे हैं उसके प्राइस में 1 लाख रुपीज एक्सचेंज की. सेल की कैलकुलेशन मुझे क्या करना है, जब मैं इनिशियल कैश फ्लो निकालूंगी देन आई वांट टू नो कि मेरे को कैश रिक्वायरमेंट कितना होगा. अब इसका परचेज प्राइस कितना है 2,20,000. अब वो जो मुझे इस प्राइस में से 1 लाख कम कर देंगे तो मैं तो सब्ट्रैक्ट करूंगी ना, बिकॉज नाउ आई विल बी रिक्वायरिंग 1,20,000 ओनली, राइट. सो ये भी माइनस होगा. अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू नो कि मेरे को कैश पे कितना रिक्वायरमेंट है इनिशियली. ये जब कम हो गया तो यहां से माइनस कर देंगे इनिशियल में से. स्टार्ट कैलकुलेटिंग.
किसी का आया? इनिशियल purchase price. What is the purchase price of the new machine? 2,20,000, right? The initial purchase price is 2,20,000. How much are the installation charges? So we'll add 40,000. This will be 2,60,000. Now what will subtract? The value that we are getting for this, the old machine, trade in. So we'll subtract the trade in, which will be 1 lakh. So this will be 1,60,000. How much this was in our books? This machine was for 1,40,000. So we are selling it at a loss. How much loss? 40,000. So loss हुआ है, so tax saving हो गया. We have saved the tax. कितना? 40 पे. What is the tax rate? 40%. So this will be 16,000. तो हमारी कॉस्ट उतने से कम हो जाएगी. Minus tax saving. So we'll subtract how much? 16,000. What will be now? It will be 1,44,000. So this is our initial cash outflows. एडिशनल वर्किंग कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है पूरे क्वेश्चन में, सो विल एज्यूम नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या ऐड नहीं किया, सिर्फ इनिशियल वर्किंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल. सबसे पहले हमने उसका परचेज प्राइस लिया ओल्ड वाली का, उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड किए, उसके बाद जो हमें पुरानी मशीन के लिए वैल्यू मिल रही थी वी हैव सब्ट्रैक्टेड दैट, उसके ऊपर जो भी टैक्स सेव किया या टैक्स दिया वो हमने कर दिया. सिंस लॉस पे बेच रहे हैं तो टैक्स सेविंग है वो, सो हमारे कॉस्ट में से टैक्स सेविंग उतना कम हो जाएगा. सो इनिशियली हमें कितने चाहिए? 1,44,000, राइट. अब हमें क्या निकालना है? सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज. कैलकुलेट सब्सिक्वेंट कैश फ्लोज. सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम ना, तो आप पहले 1 ईयर का निकालो. हर ईयर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, इट इज सेम फॉर एवरी ईयर. सो फॉर राइट नाउ, और SLM लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, रिटर्न डाउन नहीं लग रहा है, तो पहले सिर्फ 1 साल का निकालो. कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर. कितने? रेवेन्यू नहीं दे रखा इसमें. देखो, जब हमें क्या रेवेन्यू से हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है जब हम रिप्लेस करते हैं मशीन को किसी से? जब हमने क्या निकाला था? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज. सो व्हाट वी अल्टीमेटली वांट कि हमारा कितना सेव हो जाएगा, वो इसमें दिया हुआ है. कॉस्ट सेविंग दिया हुआ है ना, तो उससे निकालो. कॉस्ट सेविंग, हमें तो सेविंग चाहिए ना हमारा अल्टीमेटली, कि उससे हमें फायदा कितना हो रहा है. जब हमें सेल्स और वो सब कुछ दिया था तो हमने क्या निकाला था कि इंक्रीमेंटल हमें रेवेन्यू इससे इतना ज्यादा बढ़ गया. हाँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस नहीं दे रखा इसमें. क्या बोला है? ये कॉस्ट डिडक्शन वाली साइड है. वो क्या था? उसमें हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था. उस मशीन को जब हम ला रहे थे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा था. इस मशीन को लाने से क्या हो रहा है? हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तो हमारा वही प्रॉफिट है जो हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे. वो रेवेन्यू वो वाला नहीं दिया हुआ है, PLN वाला नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट. हाँ हाँ, देखो सब्सिक्वेंट में हमें कॉस्ट, ये क्या कह रहे हैं? कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है? 80,000. सो न्यू मशीन से मुझे कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है? 80,000.
और कोई बेनिफिट हो रहा है, मुझे क्या देखना है, सिर्फ न्यू मशीन से मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, न्यू मशीन से बेनिफिट देखना, चाहे वो रेवेन्यू के सेंस में हो रहा है, चाहे वो कॉस्ट के सेंस में हो रहा है, या किसी भी और कोई बेनिफिट हो रहा है न्यू मशीन को लाने से। 20,000 का और बेनिफिट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ओल्ड मशीन का मुझे हर साल 20,000 एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा था बार बार ब्रेकडाउन की वजह से। जब मैं नई मशीन ले आऊंगी तो वो ब्रेकडाउन चार्जेस मुझे नहीं देने हर साल, सो वो भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 ये कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। और क्या करते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? वो तो सैल्वेज वैल्यू है। वो तो सैल्वेज वैल्यू है। डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? $2,20,000 जो परचेज प्राइस था, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 40,000, व्हाट एल्स, लेस 20,000 द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन। पूरा SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड SLM के लिए क्या करेंगे, 10 साल का यूजफुल लाइफ है, विल डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 10। 24 आ रहा है, नहीं, हाँ हाँ, so this will be 24,000। क्या, ये परचेज प्राइस था, परचेज प्राइस में क्या ऐड किया, इंस्टॉलेशन प्राइजेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जब भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू जितने में हमने मशीन को खरीदा, बिकॉज हमें क्या जानना है, मशीन हमें कितना कॉस्ट करती है जब तक वो अप एंड रनिंग नहीं हो जाए। अप एंड रनिंग कब होगी, जब हमने उसे इंस्टॉल कर दिया। सो फॉर अस द एक्सपेंस ऑफ द मशीन इज 2,20,000 प्लस 40,000। जब हम इसे बेच देंगे तो कितना मिलेगा, 20,000। ये हमने माइनस क्यों किया, लास्ट क्वेश्चन में माइनस क्यों नहीं किया था स्क्रैप वैल्यू? उसमें ऑलरेडी हमें डेप्रिसिएशन बोला था कि 92% हमें डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, 8% हमने ऑलरेडी छोड़ दिया था। इसमें क्या है, ये 2,000 तो हमें 20,000 रुपए तो हमें मिल जाएंगे ना, ये तो डेप्रिशिएट नहीं हुए, ये वैल्यू तो गया नहीं। सो वी हैव सब्ट्रैक्टेड द स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो क्या आ गया ये 24,000। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन विच इज 24,000, this will come out as 76,000 76,000 is profit before tax. What is the tax rate, 40%. So we'll subtract tax at the rate of 40%, which will be 30,400. What will be profit after tax, 45,600. Now what we'll do, we'll add back the depreciation. How much was the depreciation, 24,000. So this will be 6. This is the incremental cash flow of 1 year. This is an annual incremental cash flow, right? हर 10 साल हमें ये कैश फ्लो आता रहेगा, right? अब क्या बच गया, लास्ट स्टेप, टर्मिनल कैश फ्लो। कैलकुलेट टर्मिनल कैश फ्लो।
वर्किंग कैपिटल रिलीज 20,000 कहाँ पे है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ? क्या टर्मिनल कैश फ्लो कितना होगा? है ही नहीं वर्किंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन, सो विल टेक इट एट जीरो ओनली. इसके अंदर एक सेविंग और रह गया हमारा, इंक्रीमेंटल के अंदर, सब्सिक्वेंट के अंदर हमारा एक सेविंग और रह गया, एक चीज और रह गई जो हमने ओल्ड से कंपेयर नहीं करी. डेप्रिसिएशन. पुरानी वाली पे भी डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, सो वी शुड ओनली टेक द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, पूरा डेप्रिसिएशन की जगह, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं हर चीज में. पुरानी से हमारा टैक्स सेविंग कितना हुआ, मतलब कॉस्ट सेविंग कितना हुआ, 80,000. 20,000 क्या हुआ, जो हमें ब्रेकडाउन चार्जेस नहीं देने. डेप्रिसिएशन भी क्या आएगा, इंक्रीमेंटल. तो 24,000 इसका डेप्रिसिएशन है. पुरानी वाली का डेप्रिसिएशन कितना था, पुरानी का था 10,000, राइट. उसका बुक वैल्यू कितना था, 1,40,000, राइट. 10 ईयर्स के बाद आज दी हुई है ना. हाँ, आज की बुक वैल्यू है इसकी 1,40,000. अभी इसका यूजफुल लाइफ कितना बचा है, 10 ईयर्स. तो डेप्रिसिएशन कितना, हाँ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ देखो, एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स. Purchased 10 years ago has a book value of 1,40,000 as a remaining life of 10 years, right? So 1,40,000 will be divided by 10, which will give us 14,000, right? तो इंक्रीमेंट कितना हुआ दोनों में, चेंज कितना है, स्क्रैप वैल्यू, हाँ स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, सॉरी, विद 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख. 1 लाख को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000. तो हमारा एडिशनल कितना हुआ, 14,000. 24 में से 10 we have subtracted, 14,000 additional depreciation we have to bear. अब taxable income कितना आ गया, 86. 40% of 86 will be 33. So after tax, profit after tax, 51,600, and we'll add back the depreciation of 14,000. So this will be 65,600. Any doubt, anyone? किसी को कोई भी डाउट हो? Anyone, any doubt in this part? Subsequent cash flows. Everyone is clear? Anyone with terminal cash flow? Answer to the terminal cash flow. टर्मिनल कैश फ्लो किसी का नहीं आया?
इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000, राइट? व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 20,000. बुक में हमने कितना अज्यूम किया था while calculating the depreciation? नहीं, स्क्रैप वैल्यू जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे तो कितना किया था? 20,000. स्क्रैप वैल्यू भी हम यहाँ पे 20 ही है, सो विल अज्यूम कि यही हमारी बुक वैल्यू है, कैलकुलेशन में वही लिया था ना, सो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है? तो टर्मिनल कैश फ्लो में स्क्रैप वैल्यू 20,000, ना टैक्स सेविंग हुआ ना टैक्स लॉस हुआ, सो विल नॉट ऐड एंड सबट्रैक्ट एनीथिंग, राइट? एडिशनल वर्किंग कैपिटल हमें दिया ही नहीं हुआ है, तो टर्मिनल क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 20,000 रुपीज, right? Anyone, any question? I am giving you one question for homework. Everyone please take a picture of this question and we'll discuss this in the next class. I want you people to solve that, okay? Please take a picture of this question. And I want everyone to solve it. Once you solve it on your own, then you'll realize कि क्या-क्या problems या क्या-क्या doubts हैं, right? And then we can discuss it. You have to practice a lot, only and then and only you can score marks. Otherwise, you will miss out something or the other information. Right? Shall I give you one more? We can discuss it in the next class, okay? Then solve these two questions. Okay, so thank you everyone. We'll meet in the next class and we'll try and complete the techniques of capital budgeting as well. Okay, thank you.